الدو والی الولی عشق فاطمہ مرتضی والی یا ابا الحسن مولا زمن سلطان سخن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الغدیر چینل کی جانب سے رضا موسوی اور اسرار حسین شاہ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر خدمت ہیں. نجاسات اور مطہرات کے عنوان پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے، تو بلا تاخیر آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تاکہ وقت کو بچایا جا سکے. جی بیٹا سوال کریں. جی السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام بیٹا. آغا صاحب آج کا پہلا سوال ہے کہ گھر میں کتا پالنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ معصومین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پر نماز کو پڑھنا مکروہ ہے. مکروہ آپ سبھی جانتے ہوں گے، ایسا عمل ہوتا ہے جس کا نہ کرنا محمد والے محمد کی نگاہ میں بہتر ہوتا ہے، اور وہ عمل کرنے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. تو ان فرامین کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ محبان محمد والے محمد کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں کتا موجود نہ ہو. لیکن اگر کسی مجبوری کی حالت میں دفاع کے لیے، چوری چکاری سے بچنے کے لیے کتے کا رکھنا بہت ہی زیادہ لازم ہو، تو پھر ضروری ہے کہ اس میں اتنی احتیاط کی جائے کہ کتا گھر کے برتنوں تک نہ پہنچ سکے، گھر کی چیزوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ کتا اور خنزیر نجس العین ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں جن کا بعد میں ذکر ہوگا. کتے کو وہاں پر رکھا جائے جہاں گھر کا مین گیٹ وغیرہ ہو، اور کتا وہیں پر آپ کے گھر کی رکھوالی کرے. جہاں پر آپ کے برتن پڑے ہیں، کپڑے وغیرہ سبھی کچھ پڑا ہوا ہے، وہاں تک وہ نہ پہنچ سکے. اگر ممکن ہو تو حتی الوسع کوشش کی جائے کہ کتے کو گھر میں نہ پالا جائے. جی آغا صاحب، کتا اور خنزیر کس حالت میں نجس ہوتے ہیں؟ کتا اور خنزیر جب عموماً خنزیر تو گھروں میں نہیں ہوتے، ہم یہاں پہ کتے کو لے لیتے ہیں. کتا اس وقت نجس ہوتا ہے جب وہ گیلی حالت میں ہو. مثلا میں مثال دے دوں، اگر کتا موجود ہے، وہ گیلا وغیرہ نہیں ہے، آپ کے کپڑے وغیرہ بھی اس کے منہ میں نہیں آئے، اور وہ آپ کے کپڑوں سے لگ گیا ہے، تو اس وقت آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے اور اسے پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں، اگر کتا وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ ندیوں میں، نالیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ اپنے جسم کو چھنکارا دیتے ہیں، اور پانی کے قطرات اس گھر میں موجود یا چلنے پھرنے والے لوگوں کے کپڑوں پہ آ جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں کیونکہ اس کا جسم گیلا تھا، آپ کے کپڑے نجس ہو گئے ہیں اور آپ ان کپڑوں کو پاک کریں گے. جی آغا صاحب، کپڑے اور جسم پر اگر پیشاب لگ جائے تو اسے کتنی بار دھونا ضروری ہے؟ فقہ محمد والے محمد میں طہارت کے مسائل کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. یہاں پر میں ایک دفعہ پھر افسوس کا بھی اظہار کروں گا کہ علوم محمد والے محمد سے دوری کی وجہ سے میرے معاشرے کے، میری قوم کے نوجوان طہارت کا خیال نہیں رکھتے. خصوصاً پیشاب کے کرنے میں وہ ہر طرح کی احتیاط سے دور رہتے ہیں، اور پیشاب کو وہ نجاست سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ فقہ محمد والے محمد میں پیشاب کی نجاست کے بارے میں بہت زیادہ سختی ہے بجائے دوسری 9 نجاسات کے مقابلے میں. اگر آپ کے کپڑے اور جسم پر پیشاب وغیرہ کے قطرے لگ گئے ہیں اور جاری پانی ہے، جاری پانی سے کیا مراد ہے؟ بہت بڑا تالاب ہے، نہر ہے، ٹیوب ویل ہے، یا آپ کی موٹر لگی ہوئی ہے، پائپ میں سے پانی آ رہا ہے، تو اسے ایک بار دھونے سے وہ کپڑے اور جسم پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پانی کثیر نہیں ہے، قلیل ہے، لوٹے سے یا کسی مگ وغیرہ سے آپ نے کسی پانی کو اکٹھا کیا ہے اور اس جگہ کو آپ دھونا چاہتے ہیں، تو جس جگہ پر چاہے وہ جسم ہے یا آپ کے کپڑے ہیں، قلیل پانی کی صورت میں، لوٹے کی صورت میں آپ کو 3 دفعہ دھونا ضروری ہے. جی آغا صاحب، اسی طرح پاخانہ، منی اور خون وغیرہ جب جسم اور کپڑے پر لگ جاتے ہیں تو انہیں کتنی دفعہ دھونا ضروری ہے؟ پیشاب کے علاوہ جتنے بھی نجاسات ہیں، چاہے اس میں خون ہے، منی ہے، پخانہ وغیرہ ہے،
जिस जगह पर चाहे वो जिस्म है या कपड़े पर लग गया है तो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा धोना ज़रूरी है। पानी चाहे वो कलील हो या कसीर हो। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो सकता है कि पेशाब कितनी बड़ी निजासत है कि उसके धोने के बारे में पाखाना, मनी और खून वगैरह से भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जी जी अगर साहब, अगर एतलाम की हालत में कपड़ा एक दफ़ा धोने के बावजूद भी मनी का रंग बच जाता है तो क्या ऐसा कपड़ा पाक तस्वर होगा? अमूमन नौजवान लोगों के मामलात देख रहे हैं, जिस वो बिस्तर में होते हैं या जो कपड़ा वगैरह मौजूद होता है, इतलाम की हालत होती है, उसको धो दिया जाता है। जिस तरह ऊपर अकाम है, ज़्यादा पानी है तो इतनी दफ़ा, थोड़ा पानी है तो 3 दफ़ा। उसके बावजूद भी अगर उसके कपड़ों पर, चाहे वो बिस्तर है, बेड है या पहनने वाले कपड़े हैं, उस पर मनी वगैरह के निशानात बाकी बच जाते हैं, सिर्फ मनी नहीं, अगर खून के भी निशानात बाकी बच जाते हैं, तो मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में उस कपड़े को पाक तस्वर किया जाए और उसके लिए वहम करना मुहिब्बान अहले बैत के लिए मुनासिब नहीं है। जी जी अगर साहब, अगर रोड पर पानी खड़ा है और इसके छींटे कपड़ों पर लग गए हैं तो क्या ऐसे कपड़े निजस शुमार होंगे? रोड पर पानी खड़ा हो गया है, वो बारिश का पानी भी हो सकता है और आपको उसके बारे में बिल्कुल 100% यकीन नहीं है कि ये वो पानी है जिसमें निजासत मौजूद है। निजासत से क्या मुराद है? नाली वगैरह में बंदे पेशाब वगैरह कर देते हैं, पखाना होता है, यमनी वगैरह या और निजासात जो बताई हैं, कुत्ता उसमें मुंह वगैरह डालता है। अगर आपको ऐसा यकीन नहीं है, जनरल हालत में रोड पर कोई भी पानी खड़ा है और उसके छींटे आपके कपड़ों पे पड़ गए हैं या मकान के ऊपर से सफाई हो रही है, आप गली में से गुजर रहे हैं, वो पानी आपके कपड़ों पे आ गया है, तो आप उसे पाक तस्वर करेंगे, निजस वो नहीं होंगे और इस बारे में किसी किस्म का भी वहम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक बात करना मैं भूल गया, उसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। यह निजासत को पाक करने से क्या मुराद है? उसका यही मियार है कि जो चीज़ भी आप निजस शुमार कर रहे हैं उसे एक दफ़ा उसी मकाम को धो लेना से वो पाक हो जाएगी। जी जी अगर साहब, अगर कोई बर्तन निजस हो गया है तो उसे कितनी बार धोना ज़रूरी है? अगर किसी किस्म का कोई बर्तन निजस हो गया है तो उसे 3 बार धोना ज़रूरी है। पानी चाहे वो कलील हो या कसीर हो, जिस तरह का भी होगा, बर्तन के बारे में हुक्म है कि उसे 3 बार धोया जाए। और धोने से आप क्या मुराद है, इसको भी समझ लें। मसलन एक बर्तन है, देगची वगैरह है, 3 बार धोने से मुराद यह है कि उसमें पानी डालकर हर तरह से साइडों पर, नीचे पांदे में इधर उधर पानी पहुंच जाए और उसे उंडेल दिया जाए, फिर पानी डाल दिया जाए, फिर उंडेल दिया जाए, तो इस तरह वो बर्तन पाक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि उस पूरे बर्तन को पानी के साथ पुर किया जाए। जी जी अगर साहब, अगर किसी बर्तन में शराब डाली जाए तो उसे पाक करने का तरीका क्या होगा? अल्लाह मान, अल्लाह मान। अगर किसी बर्तन में शराब डाल दी जाए और शराबी मुसलमान पी ले तो वो बर्तन इस तरह निजस हो जाता है कि 3 दफ़ा नहीं बल्कि मासूम फरमाते हैं 7 दफ़ा उसको धोना ज़रूरी है। जी जी क्या प्लास्टिक और मिट्टी के बर्तन में भी पाक किए जा सकते हैं और इनका तरीकाकार क्या होगा? बहुत ही अहम तरीन सवाल है। हमारे मुआशरे में हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे औरतें, लोग इस तरह कहते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो तो पाक होते ही नहीं, या प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो पाक नहीं होते। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मिट्टी और प्लास्टिक के बर्तन उसी तरह पाक होंगे जिस तरह ऊपर जिक्र किया गया है और आम बर्तन पाक होते हैं। जी अगर साहब, अगर कुत्ता किसी बर्तन को चाट जाए तो उसे पाक करने का तरीका क्या होगा? अगर कुत्ता किसी बर्तन को चाट गया है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले उस बर्तन को मांजा जाए और वो मिट्टी के साथ उसे मांजा जाए और उस बर्तन को 3 दफ़ा बाद में धोएं। यानी इजाफी काम ये हो गया है, जब कुत्ता किसी बर्तन को नजस करता है तो मिट्टी के साथ उसे मांजना वो इजाफी काम हो गया। 3 दफ़ा तो हर नजासत में धोना ज़रूरी होता है। जी
जी अगर साहब अगर किसी बर्तन में चूहा मार जाए तो उसे कैसे पाक किया जाएगा? फिक्का जाफरी में अगर किसी बर्तन में चूहा मर जाए, ऐसे नहीं है आया और चला गया, वो नहीं, अगर आया और चला जाए तो इससे बर्तन पाक होता है। मुर्दा होने की सूरत में उस बर्तन को 7 दफा धोया जाता है। जी अगर किसी बर्तन में छिपकली मार जाए तो क्या वो बर्तन निजस होगा या नापाक होगा? पिछली वीडियो में मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि छिपकली है, मच्छर वगैरह है, ये खून जो इंदा नहीं है, जब इनको काटा जाता है तो खून जो होता है वो टपक कर बाहर नहीं आता। लिहाजा ये अगर कहीं मर जाए, किसी बर्तन में से गुजर जाए तो फिर उसको धोने की ज़रूरत वगैरह नहीं होती, वो बर्तन वगैरह पहले ही पाक शुमार होगा। जी अगर साहब क्या बर्तन वगैरह को पाक करते वक्त कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है? बहुत ही अहम तरीन सवाल है। हर निजस चीज़ को पाक करने के मोहम्मद वाले मोहम्मद की फ़िक़्ह में तरीके बता दिए गए हैं। ये पुराने ज़माने के हमारे जो मस्तूरात हैं वो किसी भी चीज़ को पाक करने के लिए कलमा को ज़रूरी समझते हैं। हालांकि हर चीज़ के मुतहरात अलग-अलग है। जब काफिर मुसलमान होता है तो उसके लिए कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन जब बर्तन को पाक किया जाता है तो आप कलमा साथ साथ पढ़ लें तो सवाब है, लेकिन न भी पढ़ा जाए ज़रूरी नहीं है। बर्तन को पाक करने के लिए पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर बर्तन आपके सामने आए और बर्तन पे आप कलमा ही पढ़ते रहें, पानी उसके साथ नहीं ले आएंगे तो फिर आपका बर्तन पाक नहीं होगा। कलमा पढ़ने से वो निजास ही रहेगा। इसी तरह अगर कोई काफिर है, बार बार उसे गुस्ल दिया जाए, पानी डाला जाए, तो वो मुसलमान उस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेगा। जी अगर साहब आज की नशिस्त का आखिरी सवाल है कि अगर कोई औरत बच्चा पैदा करे तो उसको कितने दिन के बाद गुस्ल करना चाहिए, और बच्चे की विलादत से लेकर गुस्ल करने तक वो जिस बर्तन में खाती पीती रही है उसके बारे में क्या अहकामात हैं? अहम तरीन सवाल है। हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि जो उस घर की बड़ी बड़ी औरतें होती हैं, जो बेटी मेरी बहन बच्चा देती है, 40 दिन तक उसे नापाकी की हालत में रखती हैं, उसे गुस्ल भी नहीं करना देते। हालांकि हालत नफाज यानी बच्चा देने के बाद 10 दिन के बाद गुस्ल करना ज़रूरी होता है। 10 दिन के बाद बच्चा देने वाली औरत नमाज भी पढ़ सकती है, रोज़ा रख सकती है, अपने शौहर की खिदमत कर सकती है, शौहर बीवी का मेल मिलाप वगैरह भी हो सकता है। आमतौर पर हम मुआशरे में देखते हैं कि जो इस किस्म की औरत होती है, जिस बर्तन में वो खाना खाती है, जिस चारपाई वगैरह पर बैठती है, तो मुआशरे में हम लोग उन बर्तनों को भी अलग कर देते हैं, उस चारपाई को भी अलग कर देते हैं और हमेशा के लिए उसे नापाक तस्वर करते हैं। जबकि फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बर्तन भी पाक हैं, वो चारपाई भी उसी तरह पाक है जिस तरह घर की या दूसरी चीज़ें पाक हैं। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीद, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन रज़ा मुसवी को दुआओं में याद रखें। और आखिर पर फिर वही अपील है कि फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरवीज में हमारा साथ दें। इन वीडियोज़ को न सिर्फ अपने घरों में बार बार सुनाएं बल्कि दूसरे मोमिनीन के घरों तक भी पहुँचाएँ। ये ऐसे मसाइल होते हैं जिनका डायरेक्ट पूछना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है या आपके पास ज़राए नहीं होते, ताकि ये वीडियोज़ पहुँच जाए और हम सब मिलकर इस सवाब में शरीक हो जाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजा आले मुहम्मद। लदू वाली अल वाली इश्क फातिमा मुर्तज़ा वाली या